نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم الرؤوف الرحيم۔ آئیے حضرات ہم اور آپ سب خلوص و محبت کے ساتھ مل کر کے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو بہار شفاعت احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بلند آواز سے درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار اس مبارک جمعہ کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن و شریعت پہ پروردگار عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم تھا کہ کل کا جو تاریخ اور کل کا جو دن گزرا آپ سبھی کو معلوم ہے، تمام سنیوں کو معلوم ہے کہ جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضور علامہ مفتی اختر رضا خان تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک تھا۔ تو آج بھی جو لوگ نہیں کر پاتے ہیں فاتح، دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں، تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں۔ بزرگان دین کی فاتح کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ تو میں آج جمعہ کے اندر حضرت کے ہی تعلق سے کچھ روشنی ڈال دوں۔ کل بھی ماشاءاللہ کافی ہمارے بھائیوں نے سنا تھا سید رفیق صاحب کے دولت خانے پر۔ چاہتا ہوں آج بھی تھوڑا سا کچھ باتیں گوش گزار کر جاؤں تاکہ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے۔ جب ایک ولی کامل شریعت پر زندگی گزار کے جاتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوتا ہے اور دنیا کے لوگوں میں بھی مقبول ہوتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ کی ذات بابرکت، یہ خدا کی قسم ایسا تقوی، ایسا طہارت آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ میں آج تقوی کی بات آپ کی بتا دوں، حضرت کی تاریخ ہے پوری زندگی کے اندر کہ آپ دیکھتے ہیں ہم اور آپ کی عادت کیا ہے کہ جہاں استنجے کی حاجت ہوئی تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی ضرورت کی چیز ہے، آدمی کو کبھی کبھی ایسا بہت اشد ضرورت ہو جاتی ہے استنجے کی تو آدمی کو بیٹھنا پڑ جاتا ہے۔ لیکن واحد تاج الشریعہ اختر رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی شان کا عالم یہ تھا، آپ سوانح حیات حضور تاج الشریعہ کی پڑھیں، جب بھی آپ نے استنجا کیا تو ہمیشہ اس ٹوائلٹ باتھ روم میں کیا جس کی چھت موجود تھی، جس کی چھت موجود تھی۔ آپ کی تاریخ ہے کبھی بھی آپ نے وہاں استنجا نہ کیا جہاں سے آسمان۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ گاڑی میں جا رہے تھے، استنجے کی حاجت ہوئی تو گاڑی چل رہی ہے تو آسمان تو اوپر ہی تھا۔ آپ نے گاڑی کو رکوایا، رکوا کر کے کہا استنجے کی حاجت ہے۔ ایک طرف کو آپ گئے، ایک طرف آپ گئے، جب جانے لگے تو آپ نے فرمایا مریدین سے کہ میری گاڑی کے اندر چھتری رکھی ہے، نکالو۔ واہ، چاہتے تو آپ الگ جا کے استنجا کر لیتے، کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اسے کہتے ہیں اللہ والوں کا تقویٰ۔ بولے جب اختر رضا نے کبھی اب تک کھلے آسمان کے نیچے استنجا نہ کیا تو آج کیا کھلے آسمان کے نیچے استنجا کرے گا؟ بولے کہا میری گاڑی کے اندر چھتری کا انتظام ہے، میں جانتا ہوں کہ کبھی حاجت پڑ جائے استنجے کی تو آسمان کے لیے استنجا نہ کیا جائے، میری چھتری نکالو، چھتری لگا کر حضرت نے استنجا۔ یہ آپ کا مقام، اللہ اکبر، یہ آپ کے تقوی کا عالم۔ ایک مرتبہ آپ کسی دورے کے اوپر باہر گئے، باہر جانے کے بعد وہاں مجمع تھا بہت، تو کافی خواتین کا بھی مجمع تھا، دیکھنے کے لیے آئے، دور دور سے بولے اختر رضا آئے ہیں، اختر رضا آئے ہیں۔ انڈیا سے باہر کی بات کر رہا ہوں میں۔ وہاں پہنچے تو عقیدت کے اندر آپ جانتی ہیں عورتوں کوئی دم کروانے آتی ہے، کوئی سر پہ ہاتھ رکھوانے آتی ہے۔ اچانک
کوئی خاتون برداشت نہ کر سکی اپنی کیفیت کو. حضرت کی عمر تھی, بیت ہاتھ میں لیے ہوئے تھے, اچانک کوئی خاتون دوڑ کر کے آئی اور آ کر کے حضرت کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا. حضرت کا اتنا جلال تاریخ بتاتی ہے, اتنا جلال. آپ نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا یہاں خاتونیں مردوں کا ہاتھ پکڑتی ہیں یا ہاتھ سر پہ رکھواتی ہیں, کروڑوں مرتبہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت. حضرت نے فرمایا جملہ, کروڑوں مرتبہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اگر مجھے معلوم ہوتا یہ خاتونیں سے آ کر کسی پیر یا بزرگ کا ہاتھ پہ ہاتھ رکھتی ہیں تو میں ہرگز اپنی زندگی میں یہ نہ. حضرات محترم, یہ حضور تاج الشریعہ کا فتویٰ تھا, فرماتے میں کبھی نہ آتا. عزیزان ملت اسلام, یا وہ ذات حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ کی پوری دنیا کے اندر بلا شبہ عرس منایا گیا تاج الشریعہ کا, بلا شبہ عرس منایا گیا حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا. حضرات محترم, یہ وہ ذات ہے کہ اللہ اکبر. ایک شخص آپ کے مرید تھے, عالم دین تھے, تو کچھ لوگوں نے ہوتے ہیں آپ اکسانے والے, تو آپ کے ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہاں بولے یار میں کہاں گیا مرید ہونے کے لیے, میں تو اب یہاں نہیں آؤں گا, اب یہاں حضور اختر رضا کے یہاں نہیں آؤں گا. آپ کے پاس خبر پہنچی, انہوں نے آنا بند کر دیا. حضور تاج الشریعہ کے پاس خبر آئی کہ وہ حضور بولے آپ کے ایک مرید تھے, انہوں نے کہا کہ اب میں یہاں آئندہ نہیں آؤں گا. اور کہنے والے نے کہا کہ بولے حضور بولے اب یہ آدمی مرتد ہو جائے گا. کہنے والے نے کہا بولے حضور آپ کے دامن کو یہاں سے چھوڑا ہے, اب یہ مرتد ہو جائے گا. اللہ اکبر, اتنا کہنا تھا. تاج الشریعہ کا تقوی دیکھیے آپ فرماتے ہیں اے خادم فوراً توبہ کرو, تمہیں معلوم نہیں اگرچہ وہ میرے سامنے ظاہری طور پہ میری بارگاہ میں نہ آئے, لیکن وہ تاج الشریعہ اختر رضا کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکا ہے. میرا ایمان ہے جس نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا انشاءاللہ قیامت تک بھی وہ مرتد نہیں ہوگی. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ نے غائبانہ طور پہ بھی اس کو برا نہیں جانا کہ کوئی میری بارگاہ میں آئے گا تو ہی مجھ سے محبت کرے گا. نہیں, بولے اگر وہ نہیں آتا ہے تو نہ آئے, وہ جہاں رہتا ہے رہے, محبت کرتا رہے, لیکن کوئی آنا میرے پاس ضروری نہیں. اور آئندہ آپ اس کے بارے میں کوئی نزیب الفاظ نہیں کہیے. بتائیے تاج الشریعہ, کیا وہ آدمی دیکھ رہا تھا تاج الشریعہ کو؟ کیا اس نے دیکھا کہ حضرت نے اپنے خادم کو ڈانٹا؟ نہیں, یہ حضرت کا تقویٰ تھا. بولے اگر کوئی نہ آئے, اگر ہم سے ہمارے اللہ والوں سے محبت رکھتا وہ بھی ہمارا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ تاج الشریعہ, اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ کے تقوی اور فتوے اور سیرت کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ معمولی بات نہیں ہے. ذات اتنی سی عمر کے اندر اتنا کام کر کے جانا اور ایسا معاملہ سامنے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ کے, کہ خدا کی قسم وہ ذات کہ جب فتوے لکھنا شروع کیا تھا تاج الشریعہ نے, تو ہر زبان کے اندر اللہ اکبر, خصوصی طور پر جب مسئلہ آیا عربی کا, انگلش کا اور اردو کا, آپ سوچو ہندوستان کے اندر کتنے مفتی ہیں, آپ جا کر کے معلوم کریں. حضور بولے آپ نے اب تک کتنے فتوے لکھے, جو بڑے بڑے مفتیان اکرام ہیں ان سے آپ معلوم کریں. بولے حضور اب تک آپ نے اپنی عمر کے اندر کتنے فتوے لکھے. اور ایک طرف تاج الشریعہ کی ذات کو اٹھا کے دیکھ لیں, ایمان لوگوں کا کیسے بچایا. اللہ اکبر, جب تاج الشریعہ کی بارگاہ کے اندر عربی کے فتوے آئے اور انگلش کے فتوے آئے تو اللہ اکبر استفتاء آئے, تو آپ نے جو فتوے دیے تو وہ استفتاء پہلے انگلش کی جو تعداد ہے وہ سن لیجئے. انگلش کے اندر جب استفتاء آتا یعنی سوال آتا کہ بولے حضور جواب عنایت فرما, جب آپ فتوے دیتے تو 1 2 3 4 فتوے نہیں لکھے کوئی انگلش کے اندر. تاج الشریعہ رحمت اللہ نے, خدا کی قسم اتنے سوال انگلش کے اندر آپ کے پاس آتے, اتنے سوال کرنے والے سوال کرتے اور فتویٰ مانگتے. بولے حضور ہم نے استفتاء آپ کی بارگاہ میں بھیج دیا ہے, اب ہمیں آپ فتویٰ بھیج دیں. انگلش کے اندر حضور تاج الشریعہ نے 3000 سے زیادہ فتوے لکھ کر کے قوم کا ایمان, 3000 سے زیادہ فتوے لکھے انگلش. کم سمجھتے ہیں آپ 3000 فتوے, وہ بھی انگلش زبان کے اندر. کیوں؟ کیونکہ صرف انڈیا سے استفتاء نہیں آتے تھے,
हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह के अंदर, बल्कि इंडिया से बाहर भी, आउट ऑफ इंडिया से आपके पास में इस्तफ्ता आते थे, सवाल आते थे, हजरत उसका जवाब इनायत फरमाते थे। अल्लाहु अकबर। और अरबी के अंदर, जितो अरबी बड़े बड़े के बस की बात नहीं जो अरबी के अंदर फतवा दे दे। ये अरबी ग्रामर जानने वाले लोग जानते हैं कितनी हार्ड ग्रामर होती है अरबी की। जब अरबी के अंदर बाहर से फतवा आते, यहां तक के 100 से में फतवे आए, आप तारीख उठा के देख लें। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरबी के अंदर पता है कितने फतवे लिखे। हुजूर ताजुश शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब कलम चलाया अरबी के अंदर, तो 100, 200, 500 फतवे नहीं लिखे, 6000 से ज्यादा फतवे अरबी में लिख करके लोगों का ईमान बचाया। अरबी के अंदर 6000 से ज्यादा। और जो हम और आप जबान बोलते हैं उर्दू, कभी जाके पूछना सौदागिरान मोहल्ला के अंदर मुफ्तियान इकराम से कि बोले हुजूर मुफ्ती अख्तर रजा, ये अहमद रजा के चराग ने, अहमद रजा के शहजादे ने, परपोते ने कितने फतवे लिखे हैं उर्दू जबान के अंदर, तो पूरे बरेली के मुफ्तियान इकराम झूम कर कहेंगे 1000 फतवे न लिखे, 2000 न लिखे, 3000, 10,000, 20,000 फतवे न लिखे, बल्कि 22,000 से ज्यादा फतवे उर्दू में लिखकर रसूल के गुलामों का ईमान बचाया। 22,000 से ज्यादा फतवे लिख करके। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कि खुदा की कसम क्या शान है हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह की, कि आपके फतवों का ये आलम, ये आलम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 22,000 से ज्यादा फतवे लिख देने, और किसी भी टाइम कोई आदमी कोई सवाल कर लेता था। हजरत की ये शान थी। अल्लाह ने ऐसा इल्म का बहार बनाया और ऐसा इल्म अता फरमाया, किसी भी टाइम कोई भी कुछ सवाल कर ले, हजरत फौरन हाजिर जवाब में। ये आप कम समझते हैं बात? क्या जरूरी है आदमी के हर वक्त में हर मसला जहन में रहेगा? नहीं। बड़े बड़े मुफ्तियों को हमने खुद देखा, वो कहते हैं मैं हुजूर कल तहकीक के साथ आपको बताता हूं फतवा क्या है, कल मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं लिख करके क्या है, मैं 3 दिन के अंदर आपका जवाब देता हूं क्या है, मैं 10 दिन के अंदर आपका जवाब देता हूं क्या है। लेकिन वारे इमाम के प्यारे शहजादे मुफ्ती अख्तर रजा जब कोई सवाल करता, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, फौरन उसके सवाल का जवाब अपना, यह आपकी शान थी, फौरन जवाब इनायत फरमाते हैं। और सवाल करने वाला कहीं से भी सवाल कर लेता है। आज लोग आपने देखा होगा, बड़े बड़े उलमा इकराम जानते हैं, आप कारी शमीन साहब से पूछें आकर के, अगर कोई 8 साल जामे अजहर के अंदर पढ़े तो वो अपने आप के ऊपर, ये जिंदगी में वाकई ही शरफ की बात होती है, वो अपने आप के ऊपर फख्र हासिल करता है कि मैं जामे अजहर यूनिवर्सिटी से फारिग हूं। अगर कोई 3 साल पढ़े वो अपने ऊपर फख्र हासिल करता है मैं जामे अजहर से फारिग हूं। कोई 5 साल पढ़े वो अपनी उम्र के अंदर ये शरफ हासिल कर लेता है और कहता है मैं जामे अजहर से फारिग हूं। जितने जामे अजहर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, अल्लाह अकबर, जामे अजहर से कोई पढ़ के आ जाए आलिम दीन, या कोई पढ़ करके आए और फिर दीन की खिदमत करे, तो वो ये मिंबर रसूल पर कहता है कि मैं तेहदी से नेमत के तौर पे कहता हूं कि मैं अजहर से फारिग हूं, जामे अजहर से फारिग हूं, मुझे ये फख्र हासिल है। लेकिन मेरे दोस्तों, सारे उलमाए सुन्नत जब जामे अजहर से जो फारिग होता है वो ये कहता है कि मुझे फख्र है मैं जामे अजहर से फारिग हूं। लेकिन जामे अजहर ये कहता है कि अल्लाह अकबर, हम ताजुश शरिया पे फख्र करते हैं कि हमें ताजुश शरिया पे आलिम ये कहे कि हमें फख्र है कि हम जामे अजहर से फारिग हैं, और जामे अजहर यूनिवर्सिटी ये कहे कि हमें अख्तर रजा पे फख्र है। मिल्लत इस्लामिया दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, क्या समझते हैं आप? दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। अल्लाह अकबर। आपके इल्म का यह मामला था, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, खाली एक छोटी सी बात बताकर गुजरना चाहता हूं। जब हुजूर ताजुश शरिया को एक कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको बुलाया गया जामे अजहर के अंदर, तो कोई सवाल के ऊपर बहस हुई, वहां के बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम बैठे हुए थे। अल्लाह अकबर, किसी मसले के ऊपर बात चली, मसला तवील हो जाएगा, खाली मैं बताकर जाना चाहता हूं कि अल्लाह अकबर, जब बात चली तो ताजुश शरिया ने फरमाया आपकी ही यूनिवर्सिटी के अंदर फला किताब रखी है, उस किताब को मंगाओ। स्टेज पर किताब को मंगाया गया, आपने फरमाया फला सफे के ऊपर यह इबारत लिखी हुई है और आपके सवाल का जवाब आपकी यूनिवर्सिटी किताब के अंदर मौजूद है।
उठ करके। आपके इल्म का ये आलम, आपके इल्म का ये आलम। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या आपके इल्म का आलम होगा? अल्लाह ने कितना इल्म अता फरमाया था। और जब मेरे दोस्त तो बता जाऊं, वाकया निगारी मकसूद नहीं, सोचो आपका तकवा क्या था। जब आप अफ्रीका में गए थे, आंखों के ऑपरेशन की बात आई थी, तो आपको मालूम है कितने घंटे बताए थे कंप्यूटर से देख के आपकी आंखों को? जब कंप्यूटर से चेक करा अफ्रीका के अंदर, तो चेक करने के बाद वहां के डॉक्टर ने कहा 8 घंटे 13 मिनट का ऑपरेशन है। क्या कहा था? आपकी आंखों की जो तकलीफ है, हुजूर ताजुल शरिया की आंखों में जो तकलीफ हुई, बसारत थी, तो कहा 8 घंटे 13 मिनट का ऑपरेशन होगा आपका। अल्लाह अकबर। 8 घंटे 13 मिनट का ऑपरेशन। जब आप गए नर्सिंग होम के अंदर, तो जाने के बाद आप जानते हैं आपने क्या कहा था? जब डॉक्टर ने सारे औजारों की तैयारी करी ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन की तैयारी करने के बाद आपने कलाई पकड़ के कहा था कि बोले डॉक्टर क्या कर रहे हो? बोले आपके धर्मगुरु इंजेक्शन लगेगा बेहोशी का, फिर ऑपरेशन होगा। आपने कलाई पकड़कर फरमाया हरगिज़ नहीं, यह मुमकिन नहीं कि बेहोश का इंजेक्शन लगवा कर मैं ऑपरेशन कराऊं। नहीं, आपने फौरन अपने जद्दे अमजद का हवाला दिया। क्या दुनिया भूल गई? बोले मेरे जद्दे अमजद, मेरे दादा ने हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खां रहमतुल्लाह ने उदयपुर की सरजमीन पर जब तकरीर करी थी, और तकरीर करते करते आप एक कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे, आपके हाथ के अंदर बहुत बड़ा जख्म था। आपने जैसी तकरीर करते हुए आपने कुर्सी के ऊपर हाथ मारा, जख्म फट गया, आप बेहोश होकर के गिर गए। हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खां रहमतुल्लाह ताला अलैह जब कुर्सी पर गिर के बेहोश हो गए, लोग लेके गए उदयपुर के पास में एक हॉस्पिटल था जो ईसाई का था। किसका था? ईसाई का। वहां लेकर के गए, हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा को लिटाया गया। लिटाने के बाद अल्लाह अकबर, सारी तैयारी ऑपरेशन की बिला तशबीह। बात सुनिए, जब बिला तशबीह ऑपरेशन की तैयारी करना शुरू करी गई, क्या है ये घराना आला हजरत का, ऐसे का ऐसा मामला वहां आया, ऑपरेशन की तैयारी हुई। हुजूर हामिद रजा खां रहमतुल्लाह ने फरमाया क्या कर रहे हो? कहा ऑपरेशन की तैयारी, कैंची भी आ गई, पट्टी भी आ गई, ब्लेड भी आ गई, सब कुछ आ गई, ड्रेसिंग की सारे सामान आ गए, ऑपरेशन की तैयारी है। कहा अब आपके एक इंजेक्शन लगाया जाएगा बेहोशी का, फिर आपको करा जाएगा। आपने कहा हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, बेहोशी का इंजेक्शन वो भी हामिद रजा लगवाएगा, आला हजरत का बेटा लगवाएगा, अहमद रजा का बेटा लगवाएगा। बेहोशी करके इस इंजेक्शन के अंदर एल्कोहल लगा हुआ होता है, एल्कोहल मिला हुआ होता है, और वो नशे की चीज होती है, और नशे की चीज को किसी चीज में भी इस्तेमाल करना हराम है। अल्लाह अकबर। हामिद रजा ने कहा नहीं नहीं, अगर तुम मेरी कुछ बात मानो तो समझ लो। डॉक्टर ने कहा बताओ क्या कहना चाहते हो? ईसाई डॉक्टर था। कहा तुम मेरे बेड को जरा सा मोड़ दो, जिस बेड पे मुझे लिटा रखा है उस बेड को थोड़ा सा मोड़ दिया जाए। कहा क्या मोड़ दिया जाए? कहा मेरा सर उत्तर की तरफ कर दिया जाए, मेरा सर उत्तर की तरफ जाए। डॉक्टर हैरत में बोली उत्तर की तरफ क्यों कराते हो? ये पूरा पश्चिमी ठीक है बेड। आपने कहा नहीं, मेरे बेड का रुख अल्लाह अकबर, मेरा सर उत्तर की तरफ हो जाए। कहा क्यों? आपने फरमाया ए लोगों, इसलिए कि हमारे हिंदुस्तान से उत्तर का जब रुख किया जाता है तो मदीने शरीफ का रुख हो जाता है, मदीना शरीफ का रुख होता है। और जब मदीना शरीफ का रुख कर दिया तो कहा जब तुम मेरे पेट को उत्तर की तरफ करोगे, मेरा सर अल्लाह अकबर मदीने की तरफ हो जाएगा, चेहरा मेरा किबले की तरफ हो जाएगा, चेहरा मेरा किबले की तरफ होगा। ऐसा ही किया गया। अब हामिद रजा कहते हैं मेरी दूसरी बात ध्यान से सुनो, जब तुम मेरे बॉडी के अंदर ऑपरेशन शुरू करो, हाथ को काटना शुरू करो और गंदगी फासिद निजासत को निकालना शुरू करो, जो फासिद निजासत जब निकालो तो पहले चेक करना, अगर मेरे पैर हिले थोड़ी सी चुटकी मार के देखना, अगर मेरे पैर हिले तो रुक जाना, मुझे कुछ पढ़ने देना, पढ़ने के बाद फिर मेरे पैर अगर हिलना बंद हो जाए तो तुम्हारे काटने का काम शुरू कर देना। हामिद रजा ने इतना कहा तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, आप जैसा कहे तो वैसे ही कर लूंगा, लेकिन यह नामुमकिन है, आप बेहोश न होंगे तो बहुत तकलीफ होगी। आपने कहा जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, अगर तीन बार चुटकी नोचना, अगर मेरे पैर थम जाए ऑपरेशन शुरू कर देना। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। डॉक्टर ने कहा ठीक है। डॉक्टर ने जैसे कहा यस,
बोले शुरू करो। हामिद रजा ने कहा शुरू करो। अल्लाह अकबर। आपने अभी पहला मिसरा पढ़ा था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। डॉक्टर ने हाथ लगाया तो पैरों ने हरकत करी, डॉक्टर ने हाथ को छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। फिर आपने कहा दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। फिर आपने दूसरा मिसरा पढ़ा, इस तरफ उठ गई दम में थम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। फिर आपने तीसरा मिसरा पढ़ा, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। फिर डॉक्टर ने हाथ लगाया, अब पैर हिलता नहीं है, अब डॉक्टर ने काटना भी शुरू कर दिया, ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। इधर ऑपरेशन हो रहा है, उधर हामिद रजा कह रहा है, यही कह रहा है कि कुल जहां मिलके और जो की रोटी गिजा, उस शिकम की कनाहत पे लाखों सलाम, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साहब पे लाखों सलाम। इधर ऑपरेशन पूरा हुआ, ऑपरेशन पूरा होने के बाद में इधर हामिद रजा का, इधर हामिद रजा का मक्ता तैयार था। कहा काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। डॉक्टर ने कहा रुक जाओ हामिद रजा, रुक जाओ। कहा बोले क्या बात है? बोले ऑपरेशन तो हो चुका है लेकिन अभी भी कुछ पढ़ना चाहते हो? बोले हाँ आखिरी बात बाकी है। कहा आखिरी बात तुम्हारी पूरी कर लेना। डॉक्टर ईसाई था, हाथ पकड़ के कहा तुम्हारी बात पूरी बात में कर लेना, पहले मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो। फिर हामिद रजा ने कहा काश महशर में जब उनकी आमद हो, शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस कलमा पढ़ा, उसी की मोहब्बत को देख करके ताजु शरिया ने कहा था अभी रुक जा, ऑपरेशन कर बगैर इंजेक्शन के लगाए हुए, और बेहोश करके नहीं, मैं पढ़ता रहूंगा क्या जो मेरे जद्दे अमजद में पढ़ा था वही तो अख्तर रजा पढ़ेगा। जब अफ्रीका की सरजमीन पर उसी हॉस्पिटल के अंदर ताजु शरिया की आंखों को ऑपरेशन शुरू हुआ तो ताजु शरिया ने अपनी जबान से कहा था, क्या कहा था? काबे के बदल दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह को बढ़ के यही रहे थे, क्यों कहूं कि बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। इधर ताजु शरिया का ऑपरेशन पूरा हुआ, ऐसे ही जैसे ही ऑपरेशन पूरा हुआ, इधर के अफ्रीका के डॉक्टर ने ताजु शरिया का हाथ पकड़ के कहा देर न कर अख्तर रजा, मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर। ये घराना है आला अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे ही कोई मामूली घराना नहीं है आला हजरत का। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, याद रखिए आज हम और आपको जरूरत है इसी चीज की। तकरीरें बेशुमार होती हैं, करामतें बेशुमार होती हैं, उसके साथ साथ बाप की जो खिदमतें करके गए हैं हुजूर ताजु शरिया ने जो फतवे लिखे हैं, खुदा की कसम ऐसे फतवे दुनिया को दिए हैं कि बड़े बड़े लोग जहां पे रुक जाते थे, उनका इल्म खत्म हो जाता था, वहां ताजु शरिया अपना फतवा देते थे, लोगों का ईमान बचाते थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, याद रखिए बड़े बड़े फतवे हुजूर ताजु शरिया रहमतुल्लाह ने हम तक पहुंचाए हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए याद रखिए कि हमें हुजूर ताजु शरिया के फतवों पे अमल करके जिंदगी गुजारना है। मेरे दोस्तों, संजीदगी के साथ मैं आपको बता जाऊं, हमेशा हमेशा औलिया इकराम से मोहब्बत करो। इस पुरफितन माहौल के अंदर बड़ी बड़े फितने उठ रहे हैं, बड़ी बड़ी गंदी आवाजें सामने आती हैं। मैं कह करके जाना चाहता हूं, परेशानी खुदा ना करे घर में हो, सरकार मुफ्ती आजम की फातह बराबर दिलाओ। घर में परेशानी हो, सरकार गरीब नवाज की परेशानी, गरीब नवाज का फातिहा करो। घर में परेशानी हो, सरकार गौस आजम की परेशानी, सर गौस आजम की फातिहा नहीं करो। मेरे दोस्तों, गौस आजम की फातह, गरीब नवाज की फातह, आला हजरत मुफ्ती आजम की फातह जब आप घरों में करोगे, हमारा ईमान है, हम मिंबर से कहते हैं मेरे दोस्तों, अल्लाह इनकी फातिहा खाने की बरकत से तुम्हारी परेशानी को दूर फरमाएगा। जब तक जिंदा रहो, अपनी नस्लों को बताते रहो कि हमें औलिया इकराम से मोहब्बत करनी है, हमें औलिया इकराम के नक्शे कदम पर चलना है, हमें जो वलियों ने मिशन बताया है उसी मिशन को हमें लेके चलना है। हमारी नस्लों को इस बात की गुत्ती पिला दो कि वो बड़े होने से पहले पहले जान जाए कि आला हजरत कौन है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कौन है, हुजूर ताजु शरिया कौन है, गरीब नवाज कौन है, गौस आजम कौन है। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं हम खाली अपना ही ईमान बचाने में लगे, बल्कि अपने बच्चों को भी आपको ईमान बचाना है, अपनी बच्चियों को भी आपको ईमान बचाना है,
अपने मोहल्ले का, अपने अजीजो अकारिब का। किताबें घरों में रखो तो आला हजरत की किताबें रखो, अपने किताबों में घर में रखो तो ताजुश शरिया की किताबें निकली भी है, उन किताबों को घरों के अंदर पढ़ाओ ताकि हमारे ईमान की हिफाजत हो सके। अब कोई अगर ये कहे, उसके जहन में छोटी सी बात यह आ जाए कि बोले हुजूर क्या सारा काम आला हजरत पे किया जाए? गरीब नवाज भी तो मौजूद है, गौसे आजम भी तो मौजूद है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जुमला कहकर जाना चाहता हूं कि अगर खुदा की कसम जिसने मुफ्ती आजम हिंद के फतवों पे अमल कर लिया, तरीके पे अमल कर लिया, जिसने अहमद रजा के तरीके को अपना लिया, उसके घर में गौसे आजम के नारे भी लगेंगे, गरीब नवाज के नारे भी लगेंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत का मिशन भी वही था जो गरीब नवाज का मिशन है, हुजूर ताजुश शरिया का मिशन भी वही था जो गौसे आजम का मिशन है। ये कोई अलग अलग तरीके नहीं है कि सिर्फ मेरे दोस्तों किसी का नाम ताजुश शरिया है, किसी का नाम मुस्तफ़ा रजा है, किसी का नाम अहमद रजा है, किसी का नाम सरकार गरीब नवाज है, तो किसी का नाम सरकार गौसे आजम है। मेरे दोस्तों, सबका रास्ता, सबका मिशन एक ही है जो हमें ले जाता है मदीने वाले तक, जो हमें मदीने वाले तक ले जाता है। इसलिए मैं इस जुम्मे के अंदर यही मैसेज आपको दे करके जाना चाहता हूं, मेरे दोस्तों, हमेशा औलिया इकराम से मोहब्बत करो, चाहे वो वली दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया हो, चाहे वो वली साबिर पाक कलियर शरीफ के हो, चाहे वो वली हमारे मदार साहब रहमतुल्लाह हो, और चाहे वो हमारे वली सरकार गरीब नवाज हो, और चाहे वो वली बरेली के अहमद रजा हो। हर वली हमारे सरों के ताज हैं, ताज हमारे सरों के ताज हैं। हम उनके कदमों के जर्रे के बराबर भी नहीं, हम उनके कदमों के जर्रे के बराबर भी नहीं है। इसलिए हम सबको, मेरे दोस्तों, कुरान और शरीयत पे अमल करके वलियों से मोहब्बत करनी है, कुरान और शरीयत पे अमल करना है, वलियों से मोहब्बत करनी है, कुरान और शरीयत पे अमल करना है, सहाबा से मोहब्बत करनी है, कुरान और शरीयत पे अपनी जिंदगी गुजारो, नबी के नारे लगाते जाओ, नबी का मिलाद मनाते जाओ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।